discussion is Uniform Civil Code, that's called Saman Nagrik Sanhita. Nobody asked me to really make a video on this topic, so this topic is by choice, and the primary reason for this is that for past 2-3 days I had been going through this Bharat Ka Samvidhan, the Constitution of India. Well, this book was gifted to me by one of my very close friends, Simranjot Singh. He was my classmate in Indian Law Institute while we were doing ADR diploma. So that is when he gifted it to me, the moment he realized that this subject is very, very close to my heart. Now, while I was going through the Constitution of India, different provisions randomly, when I came across Article 44, which talks about a directive principle of state policy that the state shall endeavour to secure within the territory of India a uniform civil code. अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो राज्य कोशिश करेगा कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के लिए सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाई जाए. ठीक है, तो जब मैं इसको पढ़ रही थी मुझे रियलाइज़ हुआ कि आजकल वैसे भी इस टॉपिक पे काफ़ी चर्चा चल ही रही है. वो तो कोविड-19 आ गया, अदरवाइज दिस वाज अ टॉपिक विच अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव डिबेट. And also because the present government, the BJP government, in its 2019 manifesto had also strongly talked about bringing in a uniform civil code in the near future. So one, the topic has got its mention in the fundamental law of the land. केल्सन की प्योर थियोरी के हिसाब से बात करूँ तो एक ग्रैंड नॉर्म है, ये भारत का फंडामेंटल लॉ है. तो कोई भी चीज़ जिसका मेंशन इसमें है, इट्स वर्थ बीइंग टॉक्ड अबाउट. And also because the present government is really showing the political will, unlike previous governments, to bring the UCC, then why not discuss about it? So the objective of this tutorial is not to influence you in any manner whatsoever whether there should be a UCC or there should not be a UCC. I only want to bring on the table certain facts, the law provisions, certain judgments of the Supreme Court and various high courts which directly or indirectly hint towards the desirability of UCC or even non-desirability of having a UCC. So post COVID-19, if our present government, it brings a UCC and Muslims and even other religious minorities or denominations, they go onto the road and protest against the UCC, I just want you to have an informed decision by then. I don't want you to be standing there being law persons or even responsible citizens, shouting in favor of UCC or anti-UCC. No. Whatever your decision be, it should be an informed one. So the purpose of this tutorial is to bring on the table the facts relating to the same, and so that you can yourself post this video, brood over the topic, and then come to a sensible conclusion, right? Now, I've already read Article 44 out to you. There are two things that we must look into very meticulously. So the language of Article 44, which is mentioned under Part 4 of the Constitution. So the Part 4 of the Constitution है, unlike Part 3 is fundamental rights. So unlike Part 3, Part 4 में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं, जितने भी निर्देशक तत्व हैं राज्य सरकारों के लिए या राज्य के लिए, they're not enforceable, they're non-justiciable. It's mentioned under Article 37 of the Constitution that you cannot get these directive principles enforced in the constitutional courts like you can do in the case of fundamental rights. So you should know about this. Now, what are the two things that I would want all of you to focus on Article 44 is the state shall endeavour to secure for the citizens. सो स्टेट को कोशिश करनी है, मतलब संविधान निर्माताओं ने ये बोला था कि फ्यूचर के जो पार्लियामेंट होंगे उनको कोशिश करनी है कि वो एक ऐसा कानून लेकर आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए. इट इज़ नो वेयर सेइंग दैट दे वांटेड दैट द स्टेट वंस इट ब्रिंग्स यूसीसी इट शुड बी मेड एप्लीकेबल टू ऑल. सो इट नो वेयर टॉक्ड अबाउट इट्स एप्लीकेशन टू बी मेड मैंडेटरी फ्रॉम द टाइम यूसीसी कम्स इनटू फोर्स. सो व्हेन इन द फ्यूचर इफ वी हैव अ यूसीसी, वी शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम द स्टेट कि यूसीसी आते ही वो सबके ऊपर बराबर तरीके से लागू हो गया. बिकॉज अंडर आर्टिकल 44 द स्टेट शैल ओनली ट्राई टू सिक्योर वन, not enforce one. That is one. Second is क्या लेकर आना है to secure a uniform civil code. Now what do you mean by uniform civil code?
यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी का मतलब आपको देखना है दैट यू वांट इट टू बी सेम और कॉमन। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि हर धर्म जाति के लिए हम कानून लेकर आएंगे जो कि सेम होगा इन टर्म्स ऑफ इट्स लेटर्स, क्या उसमें लिखा हुआ है, या आप ये कह रहे हो कि हर धर्म का अपना पर्सनल लॉ हो सकता है जैसे कि फॉर नाउ है, बट उसकी जो स्पिरिट है वो कॉमन होनी चाहिए। इट मीन्स ऑल द पर्सनल लॉज ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज दे हैव टू conform to the basic principles, like it should be gender just, it should give equality to different genders whatsoever, it should give equal rights to men and women. So to understand what exactly is the meaning of uniform here, how do you want state to secure a uniform civil code? By making just one law uniformly applicable to all, or allowing everybody as in different religious denominations to have their own personal law, but common, uniform in the spirit, because that is the present case. Here I would like to draw your attention towards the word secularism, which was added in the preamble by 42nd amendment in 1976. So the word secular has been added. Secular का मतलब क्या होता है? दो तरीके हैं समझने के। पहला, जो स्टेट है, so state is an entity and the state shall not interfere in any of the religious or personal practices of different communities. State किसी भी प्रकार का इंटरफियर नहीं करेगा अलग अलग छोटी जातियों प्रजातियों के पर्सनल लॉज के मैटर्स में। दूसरा तरीका ये है कि स्टेट क्या करेगा, क्योंकि हम एक सेक्युलर नेशन है तो स्टेट एक कानून बना के दे देगा और कहेगा कि सब धर्मों के लिए कानून की समान तरीके से एप्लीकेबिलिटी है। तो दैट अगेन यू हैव टू लिंक दैट सेक्युलरिज्म प्रिंसिपल विद आर्टिकल 44, ओके, बिकॉज अगर आर्टिकल 44 कह रहा है कि आप एक यूनिफॉर्म लॉ बना सकते हो, तो अगर आपका जो यूनिफॉर्म लॉ है, इज इट एक्चुअली कॉन्करिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, बिकॉज सेक्युलरिज्म सेज दैट द स्टेट शैल नॉट इंटरफियर इन योर मैटर्स अनलेस इन योर रिलीजियस मैटर्स, अनलेस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ public health, morality and order, right? So this is one I want you to think about whenever you make your opinion whether UCC is desirable or not. Apart from this, there are a lot of other claims which tend to support UCC in future. जैसे कानून अगर ऐसा कोई बनेगा जिसमें सब धर्मों के लिए एक ही कानून होगा, जैसे अभी सबकी पर्सनल लॉ डिफरेंट है, तो अगर एक देश एक कानून होगा तो उससे नेशनल इंटीग्रेशन होगी, ठीक है? नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि एक कानून लाने से आप नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हो वो कानून यूनिफॉर्म होगा, सबके लिए अगर एक कानून होगा तो सब लोग जो है एकजुट हो जाएंगे। यू टू अंडरस्टैंड कि जितने अभी सिविल लॉज ऑलरेडी कंट्री में हैं, 90% ऑफ द सिविल लॉज विच आर ऑलरेडी कोडेड, दे आर ऑलरेडी यूनिफॉर्म इन नेचर। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं वो हम सिर्फ पर्सनल लॉज ही तो बचे हैं, बाकी जितना भी सिविल मैटर है हम ऑलरेडी यूनिफॉर्म कोड्स ला चुके हैं। टॉक अबाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, दीज आर ऑलरेडी द सिविल लॉज एंड दे आर इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द रिलीजियस डिनोमिनेशंस और कम्युनिटीज़ और माइनॉरिटीज़ irrespective ऑफ द स्टेटस, राइट? तो अगर इतने सारे कानून जो कि सिविल इन नेचर है या इवन क्रिमिनल इन नेचर है, दोज विच आर ऑलरेडी यूनिफॉर्म इन नेचर, अगर उनसे आपकी जो नेशनल इंटीग्रेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यूसीसी से हो जाएगी, अगर उनसे नहीं आई तो यूसीसी से आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो? तो जो क्लेम है काफ़ी हद तक बेसलेस हो जाता है, राइट? However, there's only one claim which sounds intelligible to me, is that bringing in UCC will promote gender just laws. So the laws which are giving justice to both the genders, not just both, अब तो we have got like 5 genders recognized by the Supreme Court. तो हर जेंडर के लिए जो कानून समान है, अगर इस प्रकार के कानून बनते हैं और सोशल इनजस्टिस कम होती है, तो इन कारणों के लिए यूसीसी इज़ अ गुड ऑप्शन। बिकॉज अभी कुछ पर्सनल लॉज में दे आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस विच आर एंटी वुमेन, विच आर इन फेवर ऑफ मेन। फॉर एग्जाम्पल, Christian women, they never had the right to adoption, unless of course the JJ Act, Juvenile Justice Act, had come into picture and then the Supreme Court's judgment. Similarly, even Muslim women, they were not entitled to receive maintenance beyond the iddat period, of course, unless Shabano case the Supreme Court intervened in. So there are a lot of practices still prevalent under different personal laws of different religions which are discriminatory against women. तो अगर आप जेंडर इनजस्टिस ख़त्म करना चाहते हो, इसलिए आप यूसीसी लाना चाहते हो, दैट्स स्टिल अ साउंड स्टेटमेंट। अब हमें थोड़ा समझना होगा कि अब इंडिपेंडेंस के बाद ऐसे कौन कौन से कानून पास हुए हैं जो कि
पर्सनल लॉज में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए किए गए। तो अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, पहला जो कानून आया था दैट वाज हिंदू कोड बिल, जो पहली बार हिंदुओं के पर्सनल लॉज के ऊपर लेजिस्लेट कर रहा था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय B.R. अम्बेडकर एंड इट जस्ट फेस्ड स्टिफ ऑपोजिशन। तो जैसे अभी UCC के लिए स्टिफ ऑपोजिशन ऑलरेडी मुस्लिम बोर्ड दिखाता है, तो दैट इज़ वेरी नेचुरल बिकॉज ये लोग के अभी तक मुस्लिम लॉ अभी तक कोडिफाई नहीं हुआ, दे आर स्टिल बीइंग रेगुलेटेड बाय दोज एंशिएंट अनरिफॉर्मेटिव लॉ। तो जब ये सिचुएशन हिंदूज़ ने फेस करी थी 1950 में, जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था, उस टाइम पे भी सेम बहुत ही स्टिफ ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी थी। लेकिन हावेवर 1950 का जो हिंदू कोड बिल था वो इवेंचुअली ड्यूरिंग 1950s 4 अलग अलग कानूनों के तहत पास हो गया। सो वी हैव हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एंड द गार्डियनशिप वन। सो दीज आर द 4 डिफरेंट लेजिस्लेशंस विच फॉर द फर्स्ट टाइम sought to codify the personal law of Hindus। तो अगर आप कहते हो कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और उससे जेंडर इनजस्टिस ख़त्म हो जाएंगी, तो क्या 1950s में जो 4 एक्ट आए थे हिंदू लॉ के, जिसमें आपने पर्सनल मैटर्स में लेजिस्लेट किया था, क्या उनसे जेंडर जस्ट लॉज आ गए? अगर वो इतने ही जेंडर जस्ट होते तो आज तक उनमें अमेंडमेंट्स ना होती। इवन 2005 में जाके जब हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंड हुआ था, तब जाके women were held, daughters were also held to be co-partners and now they've got equal rights in the ancestral property like the brothers। तो सन और डॉटर को बराबर हक देना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में 1950 के जो कानून थे 2005 में जाके ये चीज़ इम्प्रोवाइज हो पाई। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी अगर कोई एक दिन में आके कोई मिरेकल नहीं कर सकता। तो आपका ये क्लेम भी जो है कहीं ना कहीं यू हैव टू लुक इनटू इट वेदर इट विल जस्ट ब्रिंग इन जेंडर इक्वालिटी, राइट। तो ये हिंदू इस तरीके से जो आपके पर्सनल लॉज हैं वो कोडिफाई होने शुरू हो गए हिंदू लॉज में। और मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लॉ के लॉ में मेजॉरिटी पर्सनल मैटर्स अब तक ऐसे हैं जिसमें अभी तक कोडिफिकेशन नहीं हुई है। अब मैं आपको कुछ ऐसे लॉज बताना चाहती हूँ जो डायरेक्टली दे आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड एज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट समवेयर दोज लॉज कॉरिस्पॉन्ड टू द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 44, जो कहीं ना कहीं पर्सनल लॉज में इनडायरेक्टली यूनिफॉर्मिटी लेकर आते हैं। तो हमें देखना होगा, समझना होगा। आई वॉन्ट यू टू हैव द पर्सपेक्टिव दैट अगर इन चीज़ों से काम चल रहा है, अगर ऑलरेडी पर्सनल लॉ जो एग्जिस्टिंग है, अगर उनमें जहाँ जहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस है अगर उनको ऑलरेडी करेक्ट किया जा रहा है, तो क्या हमें UCC की ज़रूरत होगी? Just you have to just understand and ask yourselves these questions. I'll give you fewer examples here. So the first one, I've already given you example of the HSA, which made daughters as the co-partners in the year 2005. Next example I would give you of prohibition of child marriage act of 2006. तो निर्भया केस के बाद जो है आपको मैरिज के लिए कंसेंट की एज फिक्स कर दी गई है। इट हैज़ टू बी मिनिमम 18। तो अगर आप 18 साल से कम की एज में शादी के लिए कंसेंट भी दे रहे हो तो योर मैरिजेस बिकम वॉइडेबल। तो इस लेजिस्लेशन के तहत हिंदू मैरिज एक्ट में जो शादियाँ 18 साल की उम्र से पहले हुई थी, इवन दो बच्चे ने कंसेंट दे भी दिया था, वो कंसेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। एंड ऑल दोज मैरिजेस contracted under the Hindu Marriage Act become voidable at the option of the party whose consent has been so obtained. So again, it's a very welcoming move. It tends to bring justice between men and women. I mean, they both are considered at par. That's one. I'll also give you another example. जैसे Hindu Marriage Act में section 13(2) which provides for additional grounds of divorce to Hindu female. So there's one ground which says that if her marriage was consummated or not, but if it was a child marriage, then the female can file for the decree of divorce. So if it was a child marriage और जब आप एक बार मेजर हो गए हो तो उसके बाद यू कैन ऑलवेज रेप्यूडिएट द मैरिज। यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन बिकॉज यू फॉल विद इन द प्रेमिसेस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अगर हम बाकी धर्मों की बात करें तो पारसीज में ऐसी शादियां जो हैं दे आर वॉइड पर से। अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो मेन एंड वुमेन दे बोथ हैव द सेम राइट टू रेप्यूडिएट द मैरिज ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड। इफ़ यू टॉक अबाउट से क्रिश्चियन, देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ दिस सॉर्ट व्हाटसोएवर। तो कहीं ना कहीं कोडिफिकेशन जो है ऐसी हुई है हिंदू लॉज में विच आर मोर जस्ट इफ़ यू कंपेयर विद अदर पर्सनल लॉज। सो द सेम कैन बी अडॉप्टेड बाय अदर पर्सनल लॉ मेकर्स ऑल्सो। आई मीन क्रिश्चियंस कैन ऑल्सो कम अप विद अ सिमिलर लॉ, सिमिलर लेजिस्लेशन। I'll give you another example of the case called Mary Roy versus State of Kerala 1986. इसमें 1986 में
केरला हाई कोर्ट ने बोला था कि जो क्रिश्चियन विमेन है उसका भी बराबर राइट है अपने सिबलिंग्स के जैसे अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना। तो जैसे हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक्सक्यूज मी 2005 में अमेंडमेंट आई है दैट Hindu daughter also is a co-parsoner as much as the sons of the same house. Similarly, a Christian female, she can also now inherit the property which is ancestral in nature, just like her brothers can. So it happened way back in 1986, even though there was no amendment of this sort by the legislature. So it was again a very good step. Next, I will talk about Juvenile Justice Care and Protection Act of 2000. I tell you apart, you talk about those laws which we've just discussed. This particular act has actually done miracles or wonders in bringing in the uniformity as demanded by Article 44. 2006 में जब इस कानून में अमेंडमेंट हुआ था तो जो वर्ड अडॉप्शन है उसका मीनिंग क्लियर कर दिया गया था। तो जो डेलिंक्वेंट्स है, जुवेनाइल्स हैं, जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्ट, उनको फॉस्टर होम्स के अलावा अडॉप्ट करने का प्रावधान भी है। तो इस कानून के तहत दो बहुत ही अमेजिंग जजमेंट्स आई जिसमें पर्सनल लॉज को आउस्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला और कुछ हाई कोर्ट्स ने ये बोला कि अगर आप एक क्रिश्चियन विमेन भी हैं और अगर आप अडॉप्ट करना चाहती हैं किसी जुवेनाइल को अंडर दिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, यू कैन डू इट। सो इवन इफ योर पर्सनल लॉ डज नॉट अलाउ यू, यू कैन स्टिल डू इट। And even for a Muslim woman who was in fact single was given the right to adopt a juvenile in contravention with their personal laws, क्योंकि मुस्लिम लॉज के हिसाब से अगर आप एक बच्चे को अडॉप्ट करते हो तो जो अडॉप्टेड बच्चा है और आपका जो बच्चा बाय बर्थ है द नेचुरल वन, दे आर नॉट एट पार, दे गॉट डिफरेंट राइट्स ऑल टुगेदर। लेकिन कोर्ट ने बोला नो बेब्स, यू हैव टू। सो दैट्स हाउ वी सी कि कोर्ट्स किस तरीके से इंटरवीन करके जेंडर जस्ट लॉज लेकर आ सकते हैं या लॉज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको जेंडर जस्ट बना सकते हैं। आई गिव यू द नेम्स ऑफ द केसेस हियर। तो द केस जहाँ पर क्रिश्चियन विमेन को राइट दिया गया था कि वो जे एक्ट में बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, द नेम ऑफ द केस इज जॉर्ज क्रिस्टोफर केस। दिस वाज बाय मद्रास हाई कोर्ट इन द ईयर 2009 एंड दिस जजमेंट वाज गिवन बाय जस्टिस चंद्रू। जो मुस्लिम विमेन की बात है कि एक सिंगल मुस्लिम लेडी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है इस कानून के तहत। दिस वाज द केस शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 एंड द जजमेंट वाज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आई टेल यू कुछ कानून ऐसे भी हैं जहाँ पे कुछ स्टेट लेजिस्लेचर ने ऐसे लॉज बनाए हैं, इवन तो शायद उनकी इंटेंशन आर्टिकल 44 के साथ कॉन्कर करने की नहीं भी थी, लेकिन उसके कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं विच टेंड टू ब्रिंग इन यूनिफॉर्मिटी इन द पर्सनल लॉज। फॉर इंस्टेंस हरियाणा का एक कानून है विच इज़ कॉल्ड हरियाणा पंचायती राज एक्ट ऑफ 1994। इस कानून के तहत अगर आपको पंचायत के इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करना है देन यू शुड नॉट हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन एंड इन केस यू डू देन यू ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड, राइट। तो ऐसा प्रावधान हिंदुओं के हित में जाता है क्योंकि उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से वैसे भी वी कैन ओनली डू मोनोगमी, नॉट जस्ट पर्सनल लॉ, इवन द कोडिफाइड एज पर हिंदू कोडिफाइड लॉज, हिंदूज कैन ओनली डू मोनोगमी, बाइगमी इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 494 ऑफ IPC। बट मुस्लिम में तो पॉलीगमी अलाउड है, दे कैन हैव अप टू 4 वाइफ्स। तो इमेजिन एक मुस्लिम आदमी ने 4 शादियाँ करी और 4 बच्चे हैं उसके, हर वाइफ से एक बच्चा है, तो दैट पर्सन ऑटोमेटिकली बिकम्स डिस्क्वालिफाइड एज पर दिस पर्टिकुलर एक्ट टू इवन कंटेस्ट elections for panchayat. So this guy called Javed, he had gone till the Supreme Court challenging such law as against the right to equality. So in 2003, in the case of Javed versus State of Haryana, Supreme Court said that this act is not against the personal law. So for the social welfare, such legislations can be brought in and such provisions are absolutely constitutional and they are not violative of any of your rights. So in one way, the judgment tends to promote monogamy and tends to discourage polygamy as allowed by the personal laws of the Muslims. We talk about Section 10 of the Indian Divorce Act, which was a provision which discriminated against women for so long till 1983. So according to Section 10, if a Christian wife is seeking divorce against her husband, then she has to prove not just one ground but 2 grounds. So she has to prove adultery along with another ground, which could be say adultery plus cruelty, adultery plus desertion or any other ground. लेकिन अगर Christian
husband is seeking divorce against the wife, then he has to prove in the court of law only one ground, which is adultery or cruelty or desertion. तो वाइफ को डाइवोर्स लेने के लिए अडल्ट्री के साथ कुछ और भी दिखाना पड़ेगा. मतलब आदमी ने अगर 2 ग्राउंड्स कमिट करे हैं देन ओनली द लेडी इज़ एंटाइटल्ड टू गेट डाइवोर्स. लेकिन आदमी के साथ ऐसा कुछ नहीं था. तो ये बड़े सालों से प्रोविजन चला आ रहा था. एंड क्रिश्चियन विमेन ऑफ कोर्स दे वर अडेप्टेड टू सच अ पर्सनल लॉ until and unless Justice K.K. Mathew of the Supreme Court took suo motu cognizance of it. He wrote it to the Parliament in a report in 1983 saying that, in fact, requesting that remove such a provision now or amend it. Otherwise, somewhere in the future, some court will strike it down. He rightly said it. But the Parliament, of course, did not pay much heed to it at the first place. So what happened eventually after a few years in the case of Amini versus Union of India, the Kerala High Court actually struck the section 10 of Indian Divorce Act as unconstitutional. Okay, and the reason was simple, that it was violative of Article 14 and Article 15. So Parliament eventually in 2001 had to amend the act and the provision specifically, and had put both men and women at par. So now they both have to prove just one ground. That's one. We talk about Special Marriage Act. Special Marriage Act भी एक जो provision लाया गया, I think it is the most direct provision on Uniform Civil Code. इससे पहले जो हमने जितने भी discuss करें, these were all indirectly trying to bring in uniformity in the laws as mandated by Article 44. But Specific Relief Act is a clear Uniform Civil Code given by the legislature, which deals in your personal law matters pertaining to marriage. तो अगर आपको अपने धर्म के बाहर शादी करनी है, you're more than free to marry under the Special Marriage Act. But it's voluntary in nature, so of course nobody can force you to marry under this. It's your choice that you being a Hindu, you want to marry under the Hindu Marriage Act, or if you are, say, Christian, you want to marry under your Christian Act, or you want to get Special Marriage Act involved into your affairs. So again, it's a matter of choice. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं ना कहीं सरकार दे चुकी है, बट इसका जो एप्लीकेशन है वो वॉलंटरी, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी जस्टिफाइड ऑल्सो. Why it is justified? Because when you're entering into somebody's personal sphere, those practices which those religions they've been following for generations, so they need time and space to get adapted to it. तो अगर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट को इतने साल पहले उसको 1954 में इनैक्ट किया था और आज तक आपने उसको मैंडेटरी नहीं बनाया है, तो आप अगर एकदम से यूनिफॉर्म सिविल कोड ला के लोगों को मैंडेटरी कर दोगे उसको फॉलो करना, इट कैन बिकम लिटिल प्रॉब्लमैटिक. So you have to have that sensitivity being a legislature. कुछ और जजमेंट्स रही हैं सुप्रीम कोर्ट की जिन्होंने और यूनिफॉर्म सिविल कोड की कॉन्वर्सेशन को स्टर अप कर दिया है. आई विल क्विकली डिस्कस विद यू. दैट्स शाहबानो केस in 1985 का, जिसमें कि जो 73-year-old women थी, Muslim women, she was divorced by her husband and she applied for the maintenance. She went up to the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सेक्शन 125 CRPC में जो मेंटेनेंस का प्रावधान है वो हर धर्म जाति की महिलाओं के लिए समान है. सो इवन अ मुस्लिम वुमन कुड सीक मेंटेनेंस under section 125 of CRPC. So again, it was a very welcoming move, even though the All India Muslim Personal Boards members, they did not welcome it. The Qazis belonging to that particular religion, they did not like it. They said it's a very personal affair, you cannot interfere. But the Supreme Court said no, that was injustice done against this particular gender called women, female, so we have to interfere. So section 125 was made equally applicable even to them. उसके बाद we had that Sarla Mudgal judgment 1995. So basically जो एक प्रैक्टिस काफ़ी चल रही थी कि जो एक हिंदू मर्द है उसकी शादी ऑलरेडी हो गई है एक हिंदू औरत से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, अब उसने क्या किया, अपने आप को कन्वर्ट कर लिया इस्लाम में और अब दूसरी शादी कर ली. तो इस तरीके से बड़े मज़े से हिंदू हो आप, लेकिन आप पॉलीगमी कर रहे हो अपने आप को कन्वर्ट करके. बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ या सम बॉलीवुड एक्टर्स ऑल्सो डन इट. सो इफ you can just trace about it, I think it's Dharmendra or some other actor who did the same thing, right? तो इस तरीके से हो रहा था. तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो फर्स्ट उसकी वाइफ है, द हिंदू वाइफ, इट्स एन इनजस्टिस टू हर?
और आदमी को बायगमी के लिए भी आप पनिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब तो वो मुस्लिम बन गया तो पॉलीगमी अलाउड है। तो जब ये सब चीज़ें चैलेंज हुई सलाह मुद्गल केस में, तो कोर्ट ने ये बोला कि अगर आप कन्वर्शन टू इस्लाम के करने के बाद शादी करते हैं दूसरी, डज नॉट मीन कि आपकी जो पहली शादी हिंदू मैरिज एक्ट में हुई है ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो गई। नो, सो यू आर स्टिल बाउंड टू फुलफिल योर ऑब्लिगेशंस एज अगेंस्ट द फर्स्ट वाइफ whom you married under the Hindu Marriage Act. Also, you can be booked for bigamy under section 494 of IPC, which is a very good move. Then the last case that I would like to discuss here is the famous triple talaq case. इस केस में सबसे अच्छी बात ये थी कि this case was being filed by a group of Muslim women activists. तो मैं आपको पहले भी ये बोल रही थी कि आपके पास पर्सनल लॉज हैं, यू कैन बी वेरी वेल रेगुलेटेड बाय देम इन द फ्यूचर ऑल्सो, बिकॉज वन, you have faith in those laws, second you think that it's got connection with your religion and these are very personal to you. लेकिन अगर कुछ उसमें प्रावधान ऐसे हैं जो कि socially unjust हैं, you can always challenge them, and the Supreme Court has really adopted a very liberal and very kind view always in favor of females. इस केस में क्या हुआ था, ऐसा ये जो केस फाइल किया गया था, इट वाज बाय मुस्लिम विमेंस क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी एंड दे हैड फाइल्ड इट अगेंस्ट जमाते उलेमा हिंद एंड दे सेड कि जो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है, जिसमें आदमी 3 बार बोलेगा तलाक तलाक तलाक, चाहे ओवर अ फ़ोन कॉल या राइटिंग में और इन पर्सन, तो आदमी जो है अपनी सारी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा सकता है एंड शुड नॉट बी हैपनिंग। तो कोर्ट ने ये बोला कि ये जो प्रैक्टिस है इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मैन के नॉट डू इट even if it's allowed in your personal law for so many years. You've been practicing it for centuries now. You've been practicing it for centuries now. Still it is unconstitutional because it's violative of Article 14, 15 and 21. अब इस केस में एक चीज़ आपको समझनी है, जस्ट बिकॉज कोर्ट ने बोला कि प्रैक्टिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आपने मान लिया। ये जो जजमेंट आई थी इट वॉज बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एंड द जजमेंट वॉज गिवन इन द रेशियो of 3:2. So there were 3 judges who said that the practice was unconstitutional and there were 2 judges who said that the practice is not unconstitutional. और दूसरा फैक्ट इसमें आपको समझना है कि जो 5 जजेस थे इस बेंच में, वो 5 जजेस अलग अलग धर्मों को बिलोंग करते थे। तो इवन दो जो 3 जजेस थे जिन्होंने बोला कि प्रैक्टिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उनके कारण अलग थे। सो दे हैड देयर ओन सेट ऑफ रीजंस, सो दे गेव 3 सेपरेट जजमेंट्स इवन दो द एंड प्रोडक्ट वाज द सेम, दैट द ट्रिपल तलाक कॉन्सेप्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बट व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस फॉर इट? All those 3 judges, they wrote different judgments. Now let's come to those 2 judges who did not agree with it. They said the practice is definitely sinful. ठीक है, ये sin है कि आप 3 बार तलाक बोल के औरत से छुटकारा पा रहे हो, but it's not illegal because as per the personal law the practice was totally valid. It had been followed for so many years. It's like customs and usages. So it is sinful but not illegal. So you have to keep both the things in your mind while in future you argue in favor or against UCC. एक आखिरी चीज़ बस मैं आपको ये बताऊंगी इसमें कि सरकार अगर कल को UCC लेकर भी आती है, सरकार को एक चीज़ और समझनी होगी और पहले एड्रेस करनी होगी कि ऑलरेडी जो आपके धर्म हैं, हिंदू हो गया, आपके मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, पारसीज हो गए, उसमें एक धर्म के अंदर भी बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं। सो विद इन वन रिलीजन, आई विल गिव एग्जांपल ऑफ हिंदू, पर्सनल लॉज दे वेरी। सो ये वेरिएशन कहाँ से आती है? यूजुअली ये वेरिएशन आपको डिफरेंट स्टेट्स में देखने को मिलेगी। तो एक पर्टिकुलर स्टेट के हिंदूज़ में आपको कुछ पर्सनल लॉज प्रैक्टिसेस दिखेगी जो कि अलग स्टेट में जाके चेंज हो जाती हैं। सिमिलरली मुस्लिम्स में आप देखोगे, यूपी के मुस्लिम्स, कश्मीर के मुस्लिम्स हो गए, आपके पंजाब के मुस्लिम्स हो गए, इन तीनों के पर्सनल लॉज में बहुत डिफरेंस है। तो अगर एक ही धर्म में ही इतनी वेरिएशंस है पर्सनल लॉज में, आप तो यूसीसी में कह रहे हो जितने भी धर्म हैं हम उन सबके पर्सनल लॉज को कंसोलिडेट कर देंगे। तो अगर आप करना भी चाहते हो, सबसे पहले आपकी बहस की जो शुरुआत है वो तब होगी जब आपके पास यूसीसी का एक ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड होगा। आप किसी ऐसे धर्म को कन्विंस करना चाह रहे हो एकदम से एक दिन में कि भैया ये आपका यूसीसी है और ये बहुत ही जेंडर जस्ट है, आप इसको फॉलो कीजिए, आप कम से कम उसका ड्राफ्ट तो लाइए। वो मुस्लिम कम्युनिटीज़, वैसी बाकी ऐसी कम्युनिटीज़ जिनके आज तक मेजॉरिटी पर्सनल लॉ के जो मैटर्स हैं वो अभी तक कोडिफाई हुए ही नहीं हैं, जो कि सेंचुरी ओल्ड प्रैक्टिसेस से गवर्न हो रहे हैं, आउट ऑफ नोवेयर अगर आप एक कानून लाना भी चाहते हो, पहले उसका एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कीजिए, आप अलग अलग स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कीजिए,
अलग अलग रिलीजियस डिनोमिनेशंस, अलग अलग माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जो हेड्स हैं आप उनको लेकर आइए, उनके साथ आप बहस कीजिए, डिस्कशन कीजिए, लेट द टॉपिक गो टू द पब्लिक डोमेन। अब आप कहेंगे कि जो अभी प्रेजेंट लॉ कमीशन है उसने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस रिलीज़ करे हैं पब्लिक डोमेन में, इट्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, जिससे वो लोगों का ओपिनियन जानना चाह रही है कि यूसीसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। गाइस, इफ़ यू गो थ्रू दोज क्वेश्चंस यू विल फाइंड दैट the questions are not at all relevant, most of the questions. For example, one of the questions deals with friend deed. फ्रेंड डीड का हमने कोई कॉन्सेप्ट सुना ही नहीं है, तो क्या फ्रेंड डीड अलाउड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि यूसीसी आने से जेंडर जस्टिस होगी? तो इस तरीके के अगर आप सवाल लोगों से पूछोगे बिना उनको एजुकेट किए, तो आई डोंट थिंक इट सर्व्स एनी पर्पस। सो एनी हेल्दी डिबेट इज़ पॉसिबल ऑन यूसीसी ओनली वंस यू हैव अ ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड ऑलरेडी। जब हम उस ड्राफ्ट को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इट इज़ biased in favor of one religion or the other, or it is actually trying to bring in justice for men and women both equally. So these are the things that we have to ask ourselves. We have to do a lot of research, and then only we should be talking in favor or against UCC. I would still say that first of all we have to have a draft ready. तो इस वक्त लॉ कमीशन का काम होना चाहिए कि एक बहुत ही प्यारा सा ड्राफ्ट बनाया जाए यूसीसी का, उसको पढ़ा जाए, उस पर खूब डिस्कशन हो। वी शुड नॉट हरी अप विद इट, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे, आई वुड लाइक टू से फ्यू लाइन्स हियर. सो व्हाट द ब्रिटिश इन 175 years failed to do, or probably was afraid to do, what the Muslims in the course of 500 years refrained from doing. We should not give power to the state to do that in one go, right? We should proceed with it, but not in haste, but with sympathy, statesmanship, experience and caution. Thank you so much. Jai Hind.